Hello students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we will begin with the lesson number 5 of your class 3 science, that is our body, a living machine. You know, our body is like a machine. It has many organs which have different functions too. Like a machine has different parts to perform various functions. Likely our body has different organs to perform various functions, like we have hands to write, to eat, and we have legs to walk, to run, to jump. We have eyes to see, we have mouth to eat or talk, we have hairs, we have brain to think, we have stomach to eat, to digest food. So let's begin with this lesson. In this lesson we will study about skeleton system, कि skeleton system किसका बना होता है, bones का बना होता है. Third, second is muscular system. Third is digestive system. Fourth is respiratory systems or breathing system, जिससे हम respirate को करते हैं, जिससे हम breathe करते हैं. Fourth is circulatory system. Fifth is circulatory system. Sixth is excretory system, जिससे हमारा food जो भी excretion होता है. And the next is nervous system, जिसमें हम think करते हैं, like brain. And the next is reproductive system, जिसमें हम reproduce करते हैं अपने young ones को. And the last one are sense organs, like eyes, ears, nose, tongue, skin. These all are the sense organs. Let's begin. Human body is like a machine. Human body किसकी तरह है? एक machine की तरह है. A machine has different parts and each part has special function. और उस machine के जैसे एक machine के different parts होते हैं और special function होता है machine के. In the same way, our bodies also has different organs to perform various functions. Similarly, हमारी body के भी different organs होते हैं और हर organ अपना different functions perform करते हैं. A body can be fit and healthy only if all its organs work properly. एक body कभी fit और healthy हो सकती है जब उसके सारे functions properly work करे. Now, human body is made of cells. Human body किसकी बनी हुई है? Cells ही बनी होती है. Similar type of cells form join together to form tissue. जो same types के cells होते हैं वो एक साथ join होते हैं और क्या form करते हैं? Tissue. और similar tissue, a group of tissue joins together to form an organ. जो similar tissues होते हैं वो क्या form करते हैं? एक organ form करते हैं वो. A group of organs join together to form an organ system. जो एक group of organ system होता है different organs को वो एक साथ आके क्या बनते हैं? Organ system बनाते हैं, which perform special functions like writing, eating, playing. वो क्या क्या special functions perform करते हैं, जैसे writing होगा, eating होगा, playing होगा, etc. Here, these are the cells, this are the tissue, and this is an organ. Now, how many systems do we have important in our body? We have 8 systems. There are 8 important systems in our human body. First one is skeleton system. Second one is muscular system. Third one is digestive system. Fourth one is respiratory system or breathing system. Fifth one is circulatory system. Sixth one is excretory system. Seventh one is nervous system. Eighth one is reproductive system. Now let's move to the next page. First we will talk about skeleton system. Skeleton system क्या होता है? This is whole. It is a skeleton system. A human body have 206 बोन. एक adult body में 206 bones होती है, वो एक skeleton form करती है. The system forms the frame of our body. जो एक skeleton system होता है क्या form करता है? हमारी body का एक frame form करता है. It gives shapes and forms to the body. वो क्या देता है? हमारी body को एक shape और form देता है कि हमारी body से sit और stand कर सकती है. It protects our body, our delicate organs. वो हमारी body के delicate organs को protect करता है. This is the system that allows us to move and provides anchorage for our muscles too. वो क्या करता है ये system? हमें एक form provide करता है, हमारी body को framework provide करता है और movement होने में this allows us to move, movement करने में help करता है and provides anchorage for our muscles. हमारी muscles को encourage करता है. The skeleton system is made up of bones. Skeleton system किसके बना होता है? Bones का बना होता है. When we are born, जब हम born करते हैं, we have around 350 bones. हमारी 350 bones होती है.
But as we grow up, some of the bones fuse or grow together to form a big bone. जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं तो कुछ बोन्स फ्यूज हो जाती है और क्या बनाती है, एक बिग बोन बना लेती है. So by the time we are adults, we have 206 bones in our body. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, अडल्ट होते हैं, हमारी बॉडी में 206 बोन आ जाती है. This is whole the skeletal system. It has 206 bones. Now the bones joins with each other at joints. Bones कहाँ पे join करती है एक दूसरे को? Joints पे join करती है. They are joined together by a smooth shiny substance called cartilage. वो एक साथ join करती है और एक smooth shining substance बनाती है, that is cartilage. The bones are held together by strong elastic bands. Bones एक साथ held होती है, क्या बनाती है? Strong elastic bands बनाती है of tissue called ligaments. उनको क्या कहते हैं हम? Ligaments कहते हैं. Now the bones are made of hard tissues that are very strong. Bones hard tissues की बनी होती है जो बहुत ज़्यादा strong होती है. Now let's talk about muscular system. Muscular system क्या होता है? The muscular system is made up of muscles. वो muscles से बना होता है. Muscles कहाँ पे होती है? हमारी bones के ऊपर होती है. हमारी body को shape और size देती है muscles. There are more than 600 muscles in our body. हमारी body में 600 से ज़्यादा muscles हैं. Some muscles are attached to the bones. कुछ muscles क्या होती है? Attached होती है हमारी bones से. The muscular system help us to move and does different kinds of work. वो हमारी body के movement में help करती है और different kind of work करती है. Proper exercise can make our muscles strong. जो proper exercise होती है वो क्या करती है? हमारी muscles को strong बनाती है. Now let's talk about digestive system. Digestive system क्या होता है? When we smell food, our mouth starts watering. जब हम food को smell करते हैं, हमारा mouth watering करना start करता है. Have you ever wondered? This is the beginning of digestion. वो क्या होता है? Beginning होती है digestion की. Digestion is the process of changing of food into a simpler form so that it can be used by the body. Digestion वो एक simpler process होता है change करने का, food को simpler form में, liquid form में लाने का, जिससे हमारी बॉडी उसे हमारा ब्लड डिफरेंट पार्ट्स में सर्कुलेट कर सके उस फूड को. द फूड दैट वी च्यू मिक्सेस विद सलाइवा. जो हम फूड च्यू करते हैं वो किससे मिक्स हो जाता है? सलाइवा के साथ मिक्स होता है एंड बिकम्स सॉफ्ट. देन इट बिकम्स सॉफ्ट. वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट बन जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है कभी कभी. द फूड देन गोज टू द स्टमक. वो कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है. इन द स्टमक it mixes with digestive juices. वो digestive juices के साथ mix होता है हमारे small intestine में. After about 4 hours of eating, the food goes into the small intestine. 4 घंटे खाने के बाद, 4 घंटे के बाद हमारा 4 hours के बाद हमारा food small intestine में जाता है. Here the digestive food is taken in by the blood and carried to the other parts of the body. तो digestive food क्या होता है? वो हमारा ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है और वो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में लेके जाता है. द अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू द लार्जर इंटेस्टाइन. जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ चला जाता है? हमारी बॉडी के लार्जर इंटेस्टाइन में चला जाता है. फ्रॉम देयर इट इज थ्रोन आउट थ्रू द एनस. फिर वहां से वो सारा वापस बाहर थ्रो हो जाता है थ्रू आवर एनस. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम और ब्रीथिंग सिस्टम. जहाँ से हम ब्रीथ करते हैं, जिस सिस्टम से ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, दैट इज द रेस्पिरेटरी और ब्रीथिंग सिस्टम. Lungs include, lungs are the part of respiratory system. We breathe in and out air through our nose. हम कहाँ से breathe in और breathe out करते हैं? Through our nose. The nose, the windpipe and the lungs help us to breathe. जो nose होती है, windpipe होती है और जो हमारा lungs होता है, क्या help करते हैं? हमें breathing में help करते हैं. When we breathe in, air enters through our nose and goes into the windpipe, finally enters the lungs. जब हम ब्रीथ इन करते हैं, एयर एंटर करती है हमारी नोज से, फिर विंड पाइप्स के थ्रू हमारी लंग्स में जाती है. देन द एयर वी ब्रीथ इज कॉल्ड ऑक्सीजन. जो हम एयर ब्रीथ करते हैं दैट इज ऑक्सीजन और जो हम ब्रीथ आउट करते हैं दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. द ब्लड प्रेजेंट इन द लंग्स एब्जॉर्ब दिस ऑक्सीजन. जो ब्लड प्रेजेंट होता है हमारे लंग्स में वो एब्जॉर्ब कर लेता है इस ऑक्सीजन को. द ब्लड टेक्स दिस ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो ब्लड क्या करता है? इस ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ले जाता है. द एयर वी ब्रीथ आउट इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड. जो एयर हम ब्रीथ आउट करते हैं वी एक्सहेल दैट इज द
कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज अ वेस्ट गैस। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? CO2 is the waste gas. Here is grow with knowledge point. Here in the nose trap the dust particles present in the air. जो एयर्स में हमारी नोज में हेयर्स होता है वो क्या करता है? डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है और अंदर जाने से रोक देता है। सेकेंड, एडल्ट लंग्स होल्ड एन एवरेज ऑफ 3 लीटर्स ऑफ एयर। जो एडल्ट की लंग्स होते हैं वो एटलीस्ट 3 लीटर्स ऑफ एयर को होल्ड कर सकते हैं। Now, circulatory system. What do you mean by circulatory system? The organ that makes this system are heart, blood and blood vessel. जो organ से system को बनाते हो क्या है? हमारे heart है, blood है और blood vessels है। Our heart is like a pump. हमारा heart कैसा है? Pump की तरह है। It pumps blood to all the parts of the body. वो blood को pump करता है हमारी body के सारे parts में। Blood is red liquid that flows in the thin tube called blood vessel. ब्लड क्या है? रेड कलर का लिक्विड है। वो क्या करता है? हमारे ब्लड वेसल्स के थिन ट्यूब में फ्लो करता है। ब्लड कैरीज फूड एंड ऑक्सीजन टू द ऑल द ऑर्गन्स। ब्लड क्या कैरी करता है? फूड और ऑक्सीजन कैरी करता है हमारी बॉडी के सब ऑर्गन्स में। द हार्ट इज मेड इंटायरली ऑफ मसल्स। हार्ट किसका बना होता है? इंटायरली इट इज मेड अप ऑफ द मसल्स विच वर्क ऑल द टाइम। हमारा हार्ट हर टाइम वर्क करता था, इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग our heart keeps on working. Grow with knowledge point. Our heart beats 72 times in 1 minute. 1 minute में एक heart 72 times beat करता है. When you are sleeping, it still beats. Now next page. Excretory system. What do you mean by excretory system? Excretory system क्या होता है? Two bean-shaped kidneys, skin and lungs are organs of the excretory system. टू बीन शेप किडनीज होती है हमारी, ऑर्गन्स होते हैं, सॉरी स्किन होता है, किडनीज होती है, लंग्स होते हैं, क्या है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज थ्रोन आउट विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम। जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में वो किसके थ्रू थ्रो आउट होता है? हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू। किडनीज रिमूव द वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। जो किडनीज क्या करती है? वेस्ट को रिमूव कर देती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन from our body. Skin remove the waste salts in the form of sweat. Skin क्या करती है? Waste salts को remove करते हैं हमारी body से sweat की form में। Lungs give out carbon dioxide when we breathe out. Lungs क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं जब हम ब्रीथ करते हैं। Now let's talk about nervous system. Nervous system क्या होता है? This is the most complex and delicate system of all the systems in our body. ये क्या है? बहुत कम ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डेलिकेट सिस्टम है हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स में से। इट इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। नर्वस सिस्टम का होता है हमारे ब्रेन में होता है और वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। जो खाली ब्रेन में नहीं होता, हमारी बोन मैरो में भी होता है। इट कंट्रोल्स ऑल द अदर सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी। वो हमारी बॉडी के सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है कि व्हाट वी आर थिंकिंग। वो सिग्नल्स देता है हमारे सेंस ऑर्गन्स जो हमें बताते हैं। एक बार सिग्नल जाता है हमारे ब्रेन के पास। इट इज मेड अप ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। किस किस चीज का बना होता है हमारा नर्वस सिस्टम? ब्रेन का, स्पाइनल कॉर्ड का और नर्व्स का। द ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ दिस सिस्टम्स। ब्रेन क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे नर्वस सिस्टम का। इट सेंड्स एंड रिसीव मैसेज टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वो क्या करता है? सेंड करता है और रिसीव करता है मैसेजेस को हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स में थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द वेरियस नर्व्स। द स्पाइनल कॉर्ड इज लाइक अ थिन बंडल ऑफ ऑल ओवर द बॉडी। स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है? नर्व्स होती है डिफरेंट डिफरेंट, जो सिग्नल्स जाता है स्पाइनल कॉर्ड से होता है हमारे ब्रेन में जाता है। वो क्या? थिन बंडल है हमारी सारी नर्व्स की, हमारी बॉडी की। Every part of the body is connected by a network of nerves to the brain. हमारी बॉडी के क्या होता है? Every part of the body is connected to by the network. एक नेटवर्क की तरह कनेक्टेड है। वो नेटवर्क कहाँ जाता है? हमारी ब्रेन में जाता है। This network of nerves allow the brain to communicate with all the parts of the body. जो नेटवर्क होता है नर्व्स का वो अलाउ करता है हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से कम्युनिकेट करने को हमारे ब्रेन से। ब्रेन सेंड्स एंड रिसीव्स इंफॉर्मेशन एज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम द नर्व्स। ब्रेन क्या करता है? सेंड करता है, रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को एक एज अ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल नर्व्स। सम नर्व्स कैरी वाइटल इंफॉर्मेशन। कुछ नर्व्स क्या करती है? वाइटल इंफॉर्मेशन को कैरी करती है टू द ब्रेन।
अबाउट टू सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड टच। इसको ये वाइटल इंफॉर्मेशन होती है हमारे जो कैरी करती है सेंस ऑर्गन्स के थ्रू जो जाती है। अदर नर्व्स कंट्रोल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, और जो अदर नर्व्स होती है वो क्या करती है, ऑर्गन्स को कंट्रोल करती है हमारी बॉडी के। द मेन कंट्रोल द ब्रेन कंट्रोल द फंक्शन ऑफ दीज ऑर्गन थ्रू दीज नर्व्स। ब्रेन क्या करता है, कंट्रोल करता है इन ऑर्गन्स को हमारी नर्व्स के थ्रू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट ब्रो विद नॉलेज पॉइंट। आवर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हमारा ब्रेन टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। The left side of our brain controls the right side of our body, and the right side of our brain controls the left side of our body. जो हमारी ब्रेन बॉडी का लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है वो हमारी बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है, और जो राइट साइड का ब्रेन है वो हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देयर आर स्पेशल ऑर्गन्स इन द बॉडी फॉर प्रोड्यूसिंग बेबीज। हमारी बॉडी में स्पेशल ऑर्गन्स है बेबीज प्रोड्यूस करने के लिए। दे फॉर्म द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वो ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं, एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। मैन एंड वुमेन हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैन और वुमेन के क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं। यू विल स्टडी अबाउट द सिस्टम इन हायर क्लासेस। आप हायर क्लासेस में इन सिस्टम्स के बारे में पढ़ोगे। Now let's talk about our sense organs that are eyes, ears, nose, skin and tongue. These all are the sense organs. The sense organ help us to know the world around us and send message to the brain. Spread sense organs क्या करते हैं, हमें आसपास के वर्ल्ड को नो करने में कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ कैसे दिखती है, जानने में हेल्प करते हैं कि हम जो टेस्ट कर रहे हैं वो सॉल्टी है, बिटर है, सार है, स्वीट है, कैसा है। ये सब किसकी हेल्प से हमें पता चलता है, हमारे सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से। और वो सिग्नल कहाँ जाता है, डायरेक्ट हमारे ब्रेन में जाता है। द 5 सेंस ऑर्गन्स आर आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। हमारे कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं? वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स that are eyes, ears, nose, skin and tongue. All these sense organs are connected to the brain through the nerves and all have different looks. ये सारे सेंस ऑर्गन्स हमारे कहाँ से कनेक्टेड है, ब्रेन से कनेक्टेड है नर्व्स के थ्रू, और उनके सबके डिफरेंट डिफरेंट लुक्स होते हैं। लाइक आईज अलग तरह की दिखती है, ईयर्स अलग तरीके से दिखते हैं, नोज अलग तरीके से, टंग और स्किन अलग अलग तरीके से। नाउ एक्टिविटीज लाइक सीइंग, हियरिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग एंड टचिंग कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ ब्रेन। जो है हमारी सीइंग, जैसे हम देख सकते हैं अपनी आई से, सिग्नल कहाँ जाता है, हमारे ब्रेन में जाता है। हियरिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, टचिंग ये किसकी हेल्प से होती है, हमारी ब्रेन की हेल्प से होती है। द ब्रेन कैचेस द मैसेज एंड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड पिक्चर। ब्रेन क्या करता है, एकदम से मैसेज कैच करता है जो हमारी सेंस ऑर्गन्स भेजता है, और पिक्चर को कैप्चर करने में, पिक्चर को देखने में कैच कर देता है। साउंड्स को कैच करता है, स्मेल को, टेस्ट को और हमारी फीलिंग्स को। नाउ देयर आर सम लर्निंग पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। First point, a body can be fit and healthy only if all its organs work properly. बॉडी एक फिट और हेल्दी जब ही हो सकती है जब उसके सारे ऑर्गन्स एक साथ अच्छे से वर्क करे। सेकेंड, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। जो एक ग्रुप होता है ऑर्गन्स का वो एक साथ ज्वाइन करके एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है, विच परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस लाइक राइटिंग, ईटिंग, प्लेइंग एक्सेट्रा। वो स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि राइटिंग हो गया, ईटिंग हो गया, प्लेइंग हो गया। नाउ थर्ड पॉइंट, द स्केलेटल सिस्टम गिव्स शेप एंड अलाउंस मूवमेंट। शेप और साइज देता है आपका स्केलेटल सिस्टम आपकी बॉडी को, और मूवमेंट्स में अलाउ करता है। फोर्थ पॉइंट, द बोन्स आर मेड अप ऑफ हार्ड टिश्यूज दैट आर वेरी स्ट्रॉन्ग। बोन्स किसकी बनी होती है, हार्ड टिश्यूज की बनी होती है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द मस्कुलर सिस्टम हेल्प अस टू मूव एट दस डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। मस्कुलर सिस्टम में मूवमेंट हमने अलाउ करता है और डिफरेंट डिफरेंट वर्क करने में अलाउ करता है। नेक्स्ट, डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ फूड। डाइजेशन क्या है, जो फूड को चेंज करता है किसमें, सिंपलर फॉर्म में, सो दैट इट कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी, जिससे हमारी बॉडी उसको यूज कर सके, हमारी ब्लड उसको सोक करके सारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देता है। The organ that make the circulatory system are heart, blood and blood vessel. जो ऑर्गन एक सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर्म करते हैं वो क्या है, हार्ट है, ब्लड है और ब्लड वेसल्स है। टू बीन शेप किडनी, स्किन, लंग्स आर द ऑर्गन्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो टू बीन शेप भी किडनीज होते हैं, स्किन होता है, लंग्स होते हैं, क्या हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट होते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट, नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ आवर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स।
नर्वस सिस्टम किसका बना हुआ होता है हमारे ब्रेन का, स्पाइनल कॉर्ड का, नर्व्स का, जो नर्व सिग्नल को कैरी करती है. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.